معمول کے مطابق پورے آفس میں خاموشی چھائی تھی۔ محض کی بورڈ کی آواز ہر سمت گونج رہی تھی۔ دائیں جانب وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتی المیر کے کیبن کے باہر پہنچی۔ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس نے گہری سانس لی۔ المیر خان کے کیبن کے دروازے پر ہلکی سی دستک کر کے وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی آمد پر پورا کمرہ ایک لمحے کو ٹھہر گیا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹے کا ایک سرا کندھے سے پھسل چکا تھا، سانس ابھی تک تیز تھی جیسے سیڑھیاں دوڑ کر چڑھی ہو۔ نظریں بے اختیار زمین پر جھک گئی تھی۔ وہ داخل ہوئی اور دب سے بولی، السلام علیکم۔ آواز دھیمی تھی مگر خلوص سے بڑی ہوئی۔ سامنے صوفے پر بیٹھی نور جہاں بیگم نے جیسے ہی اسے دیکھا، ان کے چہرے پر فوراً رونق پھیل گئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ارے ہینا، کہاں رہ گئی تھی بیٹا؟ کب سے بیٹی تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور تم اب آ رہی ہو۔ میں نے المیر سے کہا تھا کہ تمہاری ٹیبل اسی کمرے میں لگائے، تم ابھی تک اپنی پرانی ٹیبل پر ہی بیٹھی ہو۔ ہینا نے چونک کر سر اٹھایا، نگاہ سیدھی سربراہی کرسی کی طرف گئی۔ جہاں المیر ٹیبل کے پیچھے فائل کھولے بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کو اس کی نظریں ملی۔ ہینا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے ہاتھ لاشعوری طور پر آپس میں الجھ گئے۔ المیر فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کرسی پیچھے سرکنے کی آواز کمرے میں واضح سنائی دی۔ جی ماں۔ اس کی آواز میں ادب بھی تھا اور احتیاط بھی۔ اصل میں آفس میں زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ میری بیوی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پروفیشنل جگہ پر ہم پروفیشنل ہی رہیں، اور ابھی یہ ایسی پوسٹ پر نہیں آئی ہے کہ باس کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے، اور مجھے مناسب نہیں لگتا ہے ہر ایک کو بتانا کہ یہ میری کال لگتی ہے۔ ہر چیز پردے میں رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ لوگ بلا وجہ باتیں بناتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی کنٹروورسی کا میں شکار ہوں اور میرے ورکرز کام چھوڑ کر مجھے اور اسے لے کر گوسپ کریں۔ نور جہاں بیگم نے بھویں ذرا سا اوپر اٹھائی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر آنکھوں میں فیصلہ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ حیرت بھری آواز میں بولی، تم باس ہو؟ اور یہ بات کس نے تمہیں سمجھائی؟ روشنی ڈالنا پسند کرو گے؟ انہوں نے قدرے زور دے کر کہا۔ المیر گھٹبڑایا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں کوئی نہ کوئی بات ضرور کرے گی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، تم باس بے شک ہو، لیکن اس سے پہلے اس کے شوہر المیر پوسٹ پر آنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ سب تمہارا ہے اور اسی کا ہے۔ تم دونوں کے علاوہ کون ہے؟ پہلے تم میری دنیا تھے، اور اب تمہاری بیوی بھی میری دنیا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں مقام کی بات نہیں کی جاتی۔ تم شوہر اور تمہارا سب کچھ تمہاری بیوی کا ہے، اور تمہارے آنے والی نسل کا۔ ہینا نے سانس روک لی۔ کمرے کی خاموشی اس کے کانوں میں شور بن کر گونج رہی تھی، اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ الفاظ اس کے لیے بہت معنی رکھتے تھے، لیکن سامنے کھڑا شخص بے حس تھا، جس نے اس رشتے کو بھی اپنی دولت سے تولا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا کہ سامنے کھڑی معصوم عورت کو سب بتا دے، جتنی اب وہ محبت جتا رہی ہے۔ ایک وقت بعد پہ یہ محبت دھری کی دھری رہ جائے گی، کیونکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ نور جہاں بیگم بات جاری رکھے ہوئے تھی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج ہی میں یہاں ٹیبل کا انتظام کرواتی ہوں، تم دونوں کا ساتھ بیٹھ کر کام کرو گے۔ اب شادی ہو ہی چکی ہے، جب بھی تم دونوں کے مزاج نہیں ملتے۔ یہ بات مجھے پسند نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ تم دونوں کی شادی واقعی پسند کی ہے یا صرف جائیداد کے لیے سمجھوتا کیا ہوا ہے۔ المین نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماں صاحب، آپ میری بات تو سنیں نا۔ نور جہاں بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آواز میں نرمی نہیں، حکم تھا۔ تمہاری چیف ہوں المیر، اور میں آرڈر دے رہی ہوں، میری بہو اسی کمرے میں بیٹھ کر تمہارے ساتھ کام کرے گی۔ جتنا وقت ساتھ گزارو گی اتنی محبت ایک دوسرے کے لیے اجاگر ہوگی، سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے رخ ہینا کی طرف کیا۔ ہینا اب بھی وہیں کھڑی تھی، جیسے زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہو۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے بیٹا؟ میں اپنے بیٹے پر حق جتا رہی ہوں، تم پر حق جتانا چاہتی ہوں، لیکن ہر رشتے کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اس لیے میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تم میرے بیٹے کے ساتھ یہیں پر کام کرنا چاہتی ہو، یا پھر باہر اپنی ٹیبل پر بیٹھو گی؟ ایک لمحے کو ہینا کو لگا جیسے سارا آفس اسی پر سوال کر رہا ہے، اور اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، اب جیسا بہتر سمجھے، میں آپ کو بات کو انکار نہیں کروں گی۔ جب ایک شخص مجھے اتنی محبت دے رہا ہے تو میں کیوں ان کی محبت کو قبول نہ کروں؟ اب جو کہیں گی وہی کروں گی۔ نور جہاں بیگم مطمئن انداز میں مسکرائی۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، میں مینیجر سے بات کر کے آتی ہوں، تم دونوں تب تک کھانے کا آرڈر دے دو۔ آج میں تم دونوں کے ساتھ یہی کھانا کھاؤں گی۔
अलमीर ने सर हाँ में हिला दिया। मास आई। दरवाजा बंद होते ही कमरे की फिजा बदल चुकी थी। अभी चंद लम्हे पहले तक जो रस्मी सी मसरूफियत थी वो अचानक एक भोजल खामोशी में ढल गई। एयर कंडीशनर की मध्यम आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। अलमीर ने कुर्सी से टेक लगाई, उंगलियां मेज पर रखी और एक गहरी सांस थी। वो कुछ कहती या बैठने के लिए कदम बढ़ाती। इससे पहले अलमीर उसे देखते ही बेजारी से बोला, क्या जरूरत थी हाँ कहने की। उसकी आवाज में झंझलाहट थी। आंखें सीधी उसकी तरफ नहीं उठी थी। तुम इनकार नहीं कर सकती। जब अम्मी ने तुम्हें मौका दिया था कि तुम अपनी मर्जी जताकर उन्हें इनकार कर दो, अच्छी बनने का ड्रामा क्यों किया? मना कर देती, कह देती तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल होती हो, लेकिन तुम्हें खुद शौक है मेरे कमरे में बैठने का, तो इनकार क्यों करूंगी? उसके दिमाग अचानक से खराब हो गया। अमूमन वो इससे नरमी से ही पेश आता था। एक वाहिद यही लड़की थी जिसने उसका बुरे वक्त में साथ दिया था, लेकिन इस वक्त ये लड़की से जहर से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। अपनी चीजें शेयर करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज उसे मजबूरन अपनी माँ की वजह से अपना कमरा तक शेयर करना पड़ रहा था, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। हिना ने पलकें झुकाई। अल्फाज उसके लिए नए नहीं थे, मगर लहजा हर बार वैसा ही चुपता था। मैं क्या कहती, आपकी अम्मी सामने थी, उन्होंने बहुत मोहब्बत से बोला था, मुझ में हिम्मत नहीं थी किसी का दिल तोड़ने की। अब इनकार कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं। मुझसे ऐसी किसी भी उल्टी बात की उम्मीद आप नहीं रखना। अलमीर कुर्सी से जरा आगे होकर बोला, मेरे सामने ना ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा कोई शौहर नहीं, बॉस हूँ, भूलो मत। मैं और तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है। जायदाद मेरे नाम होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कि तुम अपने दिमाग में ख्याली बनाव बनाकर बैठी हो, कि मैं वाजिया कर देता चाहता हूँ। मैं और तुम दो अलग दुनिया के मालिक हैं। तुम्हारी जिंदगी मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं अपने जैसी मॉडर्न लड़की ही अपने लिए मुंतखब करना पसंद करूंगा, जो मेरे साथ सोसाइटी में मूव कर सके। तुम्हारी तरह नहीं, दबूसी जो डॉक्टर बन जाने के बावजूद कुछ नहीं कर पाई जिंदगी में। हिना के होंठों पर एक लहजे को हल्की सी कपकपाहट आई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। नजरें झुकाकर बोली, मैं जानती हूँ मेरी क्या औकात है। ये मुझे मालूम है, अब बार बार याद नहीं करवाए करे प्लीज। मुझे अच्छी तरह मालूम है हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है। मैं हर रात सोफे पर सोने से पहले खुद को समझाती हूँ, इसलिए आप इस चीज की फिक्र छोड़ दें। वो आहिस्ते से सोफे के किनारे जाकर बैठ गई। चंद में खामोशी रही, फिर वो सर झुकाकर बोली, मैं सिर्फ इसलिए ऐसा बिहेव करती हूँ ताकि आपकी अम्मी को कुछ भी मालूम ना हो। मुझे पता है आपका खानदान कितना ऊंचा है और मैं कितनी नीची जात की हूँ। अगर आपकी अम्मी को कॉन्ट्रैक्ट की मायाद पूरी होने से पहले ही पता चल गया तो आपके लिए ही नुकसान होगा। आपको जायदाद नहीं मिलेगी और मुझे मेरी तनख्वाह के पैसे। इसलिए मैं उनके सामने ही इस दावे से यही जाहिर करती हूँ कि आप मेरे शौहर हैं और हम दोनों के दरमियान किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसकी आंखें नम हो गई थी, लहजा काफी भीगा हुआ था। एक लड़की के लिए ऐसे अल्फाज हमेशा ही तकलीफ दा देते हैं। शादी को महज 10 दिन हुए थे और वो तलाक की बात कर रहा था। न जाने कि उसका दिल बहुत बुरी तरह से उदास हो गया। हालांकि उसे बखूबी इल्म था कि एक ना एक दिन तो ये होना है। उन दोनों का इख्तिताम तलाक ही है, मगर उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं मौत से की आस लगाए बैठी थी। और कहते हैं ना, जब अल्लाह की तरफ से उम्मीद रखते रहो, वो एक ना एक दिन आपकी उम्मीद जरूर पूरी करता है। मीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ देर खामोश खामोश रहा था और फिर संजीदगी से बोला, मैं ये सब तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं कहा था। उसकी आवाज़ कदरे नरम थी, मगर सख्ती अब भी बाकी थी। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अम्मी के सामने किसी भी तरह का तमाशा नहीं चाहिए। वो मेज़ के कोने से टेक लगाकर खड़ा होगा। अगर मुझे पहले मालूम होता कि जायदाद निकाह के बाद ही मिलेगी तो मैं पहले ही कुछ न कुछ कर लेता, लेकिन आखिरी वक्त पर पता चला कि अगर निकाह होगा तभी सब मेरे हाथ आएगा, वरना सब ट्रस्ट में चला जाएगा। उसने एक लम्हे को तौक़ुफ़ किया जैसे अल्फाज तोल रहा हो। इसलिए मजबूरी में मुझे तुम्हारा साथ लेना पड़ा, वरना सच ये है कि तुम और मैं बहुत मुख्तलिफ इंसान हैं। हिना ने सर उठाकर पहली बार उसे गौर से देखा। मुझे शादी जैसी चीज़ों पर बिल्कुल एतबार नहीं है। वो बात जारी रखे हुए था, जिस इंसान से करना चाहता था उसने धोखा दे दिया। उसके बाद मैं अकेला रहना चाहता हूँ। कमरे में फिर खामोशी छा गई। हिना ने दोनों हाथ आपस में बांध दिए। मैं जानती हूँ, वो धीरे से बोली, आप मुझे सब मत बताए, अब परेशान ना हो।
उसे गहरा सांस लिया, जैसे दिल पर रखा वजन हटाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको तंग नहीं करूंगी, मेरा पैसा मिलते ही मैं खुद आपको छोड़ छोड़ दूंगी। अमीर ने सर हाँ में हिला दिया। ना तासुब था ना हैरत, बस एक रस्मी सी रजामंदी थी। ठीक है। उसे फौरन फोन उठाया, स्क्रीन पर नजर दुराई और खाने का ऑर्डर देने लगा। आवाज दोबारा कारोबारी सी हो गई, जैसे अभी कोई जाती गुफ्तगू हुई ही नहीं हो। हिना खामोशी से सोफे पर बैठी, उसकी नजरें सामने दीवार पर टंगी फ्रेम शुदा तस्वीर पर जम गई थी, मगर वो कुछ भी देख नहीं पा रही थी। चेहरे पर ऐसी बेबसी थी जो लफ्जों की मोहताज नहीं होती। न शिकवा न शिकायत, बस एक मान लिया हुआ मुखाता है। कमरे में सिर्फ फोन पर दिए जाने वाले ऑर्डर की आवाज गूंज रही थी, और इस खामोशी में दो ऐसे लोग बैठे थे जो एक ही रिश्ते में बंधे होने के बावजूद एक दूसरे से कोसों दूर थे। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकती है न कभी थम पाएगी। ठीक 2 बजे गाड़ी एक मुतवस्सित तबके के खामोश से मोहल्ले में आकर रुकी। धूप तेज थी, मगर उस गली में एक मानूस सी ठंडक थी, वही पुराना सुकून जो सिर्फ अपने घर के दरो दीवार से जुड़ा होता है। गार्ड ने फौरन पिछली नशिस्त का दरवाजा खोला। हिना आहिस्ते से बाहर उतरी, हाथ में तोहफों से भरे बैग थे, मगर आंखें नम थी। उसे चंद में वही खड़े होकर मकान को देखा। 15 साल बाद वो दोबारा यहाँ खड़ी थी, उस घर के सामने जिस छोड़ते वक्त उसने खुद को मजबूत साबित करने की बहुत कोशिश की थी। दरवाजे पर बेल दी, पहली ही बेल दोबारा खुल गया। सामने रिमशा खड़ी थी। एक लम्हे को वो पहचान नहीं पाई, फिर खुशी से चीख ही निकल गई, आप ही। वो फौरन पलटकर अंदर भागी और अगले लम्हे हिना को अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों बहनें ऐसे मिली जैसे बरसों बाद मिली हो। अम्मी पापा कहाँ है? हिना चहकती हुई बोली, और आंसू मुस्कुराहट में बदलने की कोशिश करते हो। मैं तुम सबके लिए बहुत सारे तोहफे लाई हूँ। रिमशा ने शरारती सी मुस्कुराहट से उसे देखा। अम्मी पापा अंदर है। फिर जरा संजीदा होकर बोली, कल रात बाबा आपको बहुत याद कर रहे थे, अब तो वहां जाकर हमें भूल ही गई थी। एक दफा फोन तक नहीं किया। ऐसा भी क्या शादी में मगन हो जाना। हिना हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बस मसरूफियत बहुत हो गई थी। खैर बाबा कहाँ है? रिमशा उसे सीधा ड्राइंग रूम में ले आई। कमरे में ही पुराने सोफे, दीवार पर टंगी घड़ी और कोने में रखवा अखबारों का स्टैंड मौजूद था। बाबा कोने के सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। हिना की हाथ सुनते उन्होंने सर उठाया और अगले लम्हे अखबार उनके हाथ में साकित रह गया। आंखों में आंसू भर रहे, जैसे यकीन ही नहीं आ रहा हो। बाबा। हिना तेजी से उनके पास गई और उनके सीने से लिपट गई। वो जब्त नहीं कर सकती थी। आवाज भर आ गई, हम आपसे बहुत खफा है। वो रोते हुए बोली, 15 दिन बाद आई आप, एक दफा फोन तक नहीं किया। ऐसे भी क्या मसरूफियत कि बाप ही याद ना आए। हिना ने फौरन सर उठाया, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? वो आंसू पूछते हुए बोले, हमें सब पता है कौन सी ये असल शादी है। आपने ये सब हमारे इलाज के लिए तो किया है। हिना का दिल भरा है। बाबा मैंने आपसे कहा था ना, सिर्फ 6 महीने की बात है, ये जॉब का हिस्सा है। मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूँ एक बेटी होने के नाते। बाबा ने गहरी सांस ली, हमने तुम्हें डॉक्टर बनाया, इतनी तालीम दिलवाई, और तुम सब छोड़कर किस काम में लग गई हो? हिना ने नजरें झुका ली, आपके दिल का इलाज सस्ता नहीं है बाबा। छोटी की शादी करनी है, उसकी पढ़ाई का खर्चा, अम्मी की दवाइयों का खर्चा, घर की खराजात, बहुत जिम्मेदारी है। फिर आहिस्ता से बोली, मुझे यही सबसे बेहतर ऑप्शन लगा। निकाह कर लेना वैसे भी कौन सा था, शादी के लिए निकाह है, सिर्फ 6 महीने की तो बात है। बाबा ने उसकी तरफ देखा, वो लोग बहुत रईस है। जब उनके घर वालों को सब पता चलेगा कि तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जिस मोहब्बत से आज वो औरत तुम्हें देख रही है, एक लम्हे में वो सब खत्म हो सकता है। हिना की आंखें फिर नम हो गई, मगर आवाज में अजीब सा इत्मीनान था। बस बाकी मुझे खुदा पर भरोसा है, बाबा कुछ नहीं होगा। उसे बात बदलने की कोशिश की, अम्मी कहाँ है? किचन में है। बाबा ने कहा, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। हिना आहिस्ता कदमों से किचन की तरफ पड़ी। चूल्हे पर दाल चढ़ी हुई थी और अम्मी हल्की सी झुककर चम्मच चला रही थी। हिना की आहट सुनकर वो बैठी, अम्मी। उनके हाथ में चमक गिर गया, हिना मेरी बच्ची। अगले लम्हे वो दोनों एक दूसरे से लिपट गए। उनके आंसू हिना के दुपट्टे में जज्ब हो गए थे। कैसी हो बेटा, कमजोर लग रही हो। हिना ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा, मैं ठीक हूँ अम्मी, बस आप सबकी बहुत याद आ रही थी। किचन की छोटी सी जगह में माँ बेटी की खामोशी बोल रही थी। ये वो जगह थी
जहाँ कोई मुआयदा, कोई जायदाद, कोई शर्त नहीं थी। सिर्फ रिश्ता था जो हर हाल में अपनी जगह कायम था। वो पूरा दिन अपने माँ बाप के साथ रही थी और शाम होते ही अपने ससुराल वापस चली गई। 6 महीने उसे इसी तरह तड़प तड़प कर गुजारने थे। ये तकलीफ उसने खुद अपने लिए चुनी थी। शाम ढल चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर रोशनी नरम मगर फिजा भारी थी। चमकते हुए बर्तन तरतीब से रखे थे, मगर उनके बीच खामोशी किसी गाय मारी दीवार की तरह खड़ी थी। सरबराही कुर्सी पर नूरे जहां बेगम बैठी थी, कमर सीधी, निगाहें तेज, जैसे हर हरकत नोट कर रहे हो। बाएं जानिब अलमीर था, रस्मी सुकून ओढ़े, और दाएं जानिब हिना बैठी थी, निगाहें प्लेट पर जमी हुई, उंगलियां बेख्तियार आपस में उलझी। चंद में गुजरे तो नूरे जहां बेगम ने हिना की तरफ देखा। आज तुम अपनी अम्मी के यहाँ गई थी? आवाज में नरमी कम और जान ज्यादा थी। ड्राइवर बता रहा था कि कुछ तोहफे तो आईएफपी देकर गई हो। हिना ने फौरन सर झुका लिया। जी मासाई। उसकी आवाज धीमी थी। आज मेरी सैलरी मिली थी तो इसलिए। अम्मी को दवाइयाँ भी चाहिए थी ना, वो भी रास्ते से ली थी, कुछ खर्चे के पैसे भी दे दिए। नूरे जहाँ बेगम के माथे पर हल्की सी शिकन हुई। क्या मतलब, तुम अब भी अलमीर से सैलरी लेती हो? हिना ने सर हाँ में हिला दिया। लम्हा ब्रेक करिए कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। नूरे जहाँ बेगम ने फौरन अलमीर की तरफ रुक किया। ये क्या सुन रही हूँ मैं? अलमीर? तुम मेरी बहू को सैलरी देते हो? अलमीर ने तहम्मुल से जवाब दिया। हाँ मासाई, ये मेहनत करती है, अपना काम करती है, मैं उसके पैसे दे देता हूँ, इसमें गलती क्या है? और कुछ भी देना है क्या? नूरे जहाँ बेगम ने हाथ मेज पर रखा। बिल्कुल देना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूछे इससे इसे क्या चाहिए? इसी घर वालों को क्या चाहिए? बीवी शौहर से सब कहती है, और शौहर ही बीवी का सब कुछ होता है। मैं कितनी बार समझाऊं तुम्हें? हिना फौरन चौंक गई। उसने नजरें उठाई, आवाज में अजमायन। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है मासाई। वो सीधी होकर बैठी। मेरे घर का खर्चा मैं खुद कमा कर ही उठाऊंगी, मेरे शौहर नहीं उठाएंगे। और अगर ये मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं तो सिर्फ मेरी, मेरे घर वालों की नहीं। अलमीर ने बेख्तियार उसे देखा, मगर वो बोलती रही। मैं अपने घर वालों पर कोई एहसान नहीं करना चाहती। उनका ख्याल रखना, उनका खर्चा देना, ये मेरा फर्ज है, मेरे शौहर का नहीं। नूरे जहाँ बेगम ने उसकी बात गौर से सुनी, फिर लहजा नरम किया। बेशक बेटा, बात दुरुस्त है, लेकिन अब ये भी उनका बेटा ही लगता है। अगर ये उनकी मदद करेगा तो कोई गलत बात नहीं है। तुम्हारे बाबा बीमार रहते हैं, इसे बेटा बनाकर दिखाना चाहिए। हिना की आंखें नम हो गई। उसने एक नजर अलमीर की तरफ डाली। खामोश सवाल, बेबसी और एहतियात, सब एक साथ। अलमीर ने गला साफ किया। ठीक है माँ, चाहे मैं पूछ लूंगा, जो भी जरूरत होगी मैं पूरी कर दूंगा। नूरे जहाँ बेगम ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया, पर अपनी बात बदलते हुए कहा, और हाँ, ऑफिस के काम को ना जरा जल्दी वाइंड अप करो। हनीमून के लिए जाओ। मुझे तो समझ नहीं आता अलमीर, तुम्हारी पसंद की शादी है ना? उनकी निगाहें तेज हो गई। कभी कभी शक होने लगता है कि कहीं तुमने जायदाद के लिए तो ये शादी नहीं की। अलमीर चौंक गया, फौरन अपनी माँ को देखा। घबराहट चेहरे पर आ गई। अरे नहीं माँ साईं। उसे जल्दी से सर नवीन मिला। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट काम चल रहा है ना, वरना अब तक तो ले जाता। नूरे जहाँ बेगम ने आखिरी जुमला फैसला कुन अंदाज में कहा। हाँ, जल्दी करो। खाने की खुशबू अब भी कमरे में फैली हुई थी, मगर जायका कहीं पीछे रह गया था। तीनों अपनी अपनी सोच में गुम थे। एक माँ जो रिश्तों को मजबूत देखना चाहती थी, एक बेटा जो तवाज़ुन बनाए रखने की कोशिश में था, और एक बहू जो खामोशी से अपनी हदें खुद मुकर्रर कर रही थी। खामोशी ने फिर से डाइनिंग टेबल को घेर लिया था, और चमचों की हल्की सी आवाज उसका वाहिद तोड़ बन गई थी। वक्त की रफ्तार ना कभी थम सकी है, ना कभी थम पाएगी। रात 11 बजे कमरे में दाखिल होते उसने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया। बाहर की रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे में निम अंधेरा और खामोशी थी। सामने वो बिस्तर पर टेक लगाकर बैठा था। लैपटॉप घुटनों पर रखा था, आंखों उंगलियों कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही उसने नजरें उठाकर एक लम्हे के लिए दोनों की निगाहें मिली। फिर उसने बगैर कुछ कहे लैपटॉप बंद किया और एक तरफ रख दिया। इधर आओ। उसकी आवाज संजीदा थी, हुक्म देती हुई। मुझे तुमसे बात करनी है। हिना चौंकी। दिल में कंजारा सा खदशा उभरा, मगर वो खामोशी से आगे बढ़ी और बिस्तर के किनारे उसके पास बैठ गई थी। दोनों के दरमियान चंद इंच का फासला था, मगर फिजा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। वो सीधा बैठ गया। तुम्हें जो भी करना होगा अपने माँ बाप के लिए मुझे एक दफा बता दिया करो, मैं मना नहीं करूंगा।
हिना ने फौरन उसकी तरफ देखा। आवाज में तलखी आ गई थी। आप मना कर भी नहीं सकते। वो जरा सीधी हुई। मैं आपके पैसे से नहीं, अपनी सैलरी से इनके लिए तोहफे लिए हैं, घर का राशन लिए है। अब मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? अलमीर की आंखों में आंखें तंग हो गई। मैं तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं हूँ, उसने तहम्मुल से कहा, मगर लहजे में सख्ती नुमाया थी। लेकिन हम दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मुझे तुम्हारे हर काम का इल्म होना चाहिए। और उसने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया, फिर बात और सख्त हो गई थी। आज तुम अपने माँ बाप के घर गई बगैर मेरी इजाज़त के, पूछ सकता हूँ क्यों? हिना के चेहरे पर हैरत और गुस्सा एक साथ उभरा। मैं अपनी अम्मी बाबा से मुलाकात के लिए भी आपसे इजाज़त दूँ? वो फौरन बोला, बिल्कुल लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, समझ आई? ये लफ्ज़ हिना के लिए किसी तमांचे से कम नहीं थे। अगर मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाना है, वो बात जारी रखे हुए बोला, तो एहतियात से निभाओ। 6 महीने का टाइम लिया, इस 6 महीने को तरीके से पूरा होने दो, वरना आखिरी मौका पर मुकर जाऊंगा। उसके करीब जरा सा झुका, 1 रुपया नहीं दूंगा तुम्हें, समझ आई? बेशक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हुए हैं, मगर सब कुछ मेरे हाथ में है, इसलिए जो मैं कहूँगा वही करो। हिना की आंखों में नमी भर आई, मगर आंखों में कमजोरी नहीं थी। मैंने आपके हुक्म के बगैर कोई गलत काम नहीं किया। आप मुझ पर इस तरह नहीं चिल्ला सकते। अलमीर के लहजे में अचानक सर्द महरी आ गई थी। मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल सकता हूँ। उसने कमर सीधी की। इतनी रात को मेरे सामने चुप रहा करो, जाकर सो जाओ और सुबह जल्दी उठना। हम दोनों को मीटिंग पर भी जाना है, समझ आई? हिना ने कुछ नहीं कहा, बस नम आंखों से उसकी तरफ देखा, जैसे कोई सवाल हो जो जुबान तक आते आते रुक गया। फिर वो आहिस्ता से उठकर बिस्तर से दूसरी जानब लेट गई। उसने करवट बदली, पीठ उसकी तरफ कर ली। खामोशी ने पूरे माहौल को घेर लिया। वो वहीं बैठा रहा, उसकी पुश्तों को गौर से देखता रहा। आज वो लड़ी नहीं थी, ना झगड़ा किया था, ना जवाब दिया था। ये खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि वो पूछ ले कि तुम क्या परेशान हो, मगर उसी लम्हे अना दरमियान में आ गई। उसने नजरें झुका ली, लैपटॉप दोबारा उठाया, मगर स्क्रीन पर अल्फाज साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। कमरे में 2 लोग, एक ही छत के नीचे, मगर दोनों के दरमियान फैले रास्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। रात खतरा करके पिघलती चली गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ। मीटिंग रूम में दरअसल रेस्टोरेंट की एक साइड पर बनाया गया निजी सा गोशा था। शीशे की दीवारों के पार हल्की सी रोशनी मेज पर सलीके से फाइलें, पानी के गिलास और कॉफी के मग माहौल को रस्मी बना रहे थे। वो अलमीर के साथ आकर एक तरफ बैठ गई। अलमीर की नशिस्त हमेशा की तरह पुरएतमाद थी कि कुर्सी से टिक लगाए, हाथ मेज पर रखे। हिना उसके बराबर बैठी थी, कमर सीधी, फाइल सीने से लगाए, मगर दिल की धड़कन मामूल से तेज थी। चंदों बाद 3 मर्द सूटकेस पहने उनकी मेज के करीब आए। अंदाज से लग रहा था कि लोग बिजनेस के आदी हैं। एतमाद, मुस्कुराहट और निगाहों में खुद एतमादी थी। अलमीर फौरन खड़ा हुआ, हिना भी उसके साथ उठ खड़ी हुई। अलमीर ने रस्मी मुस्कुराहट के साथ हाथ बढ़ाया। तीनों ने बारी बारी उससे मुसाफा किया। फिर एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद तीनों की नजरें हिना पर जा ठहरी, एक साथ जैसे तयशुदा हो। तीनों ने उसकी तरफ भी हाथ बढ़ा दिया। हिना लम्हा भर को घबरा गई। उसे बेख्तियार अलमीर की तरफ देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे ये कोई गैर मामूली सी बात हो। उसके इस रवैये ने हिना को संभलने का हौसला दिया। उसे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक एक करके तीनों से हाथ मिला लिया। उसी लम्हे अलमीर के चेहरे के तासुरात भी एक बारीक बेनी से तब्दील हुए, जो शायद सिर्फ वो खुद महसूस कर सकता था। सब लोग बैठ गए। मीटिंग का आगाज हुआ। प्रोजेक्ट की टाइम लाइन हमें काफ़ी इम्प्रेसिव लगी है, एक शख्स ने फाइल देखते हुए कहा। अलमीर ने मुख्तसर जवाब दिया, हमने प्लानिंग शुरू की है, बल्कि क्लियर रखी है। हिना भी गुफ्तगू में शामिल रही। डाटा रिपोर्ट्स और अगले फेज पर बात हुई। ऊपर एतमाद अंदाज में नकात वहां से कर दिए। चंद मिनट बाद फिजा कुछ हल्की हो गई। एक आदमी मुस्कुराते हुए बोला, वैसे ना, आपने जिस तरह प्रेजेंटेशन डील की है वो वाकई काबिल तारीफ है। वो हल्की सी मुस्कुराई, शुक्रिया, ये टीम वर्क का नतीजा है। दूसरा आदमी जरा आगे झुका है, और सारा सिर्फ काम ही नहीं, आपकी पर्सनालिटी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। ऐसी फील्ड में इस तरह का एतमाद कम ही देखने को मिलता है। हिना के चेहरे पर एक लम्हे को झिझक उभरी, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। प्रोफेशनल माहौल में एतमाद ज़रूरी होता है।
उसने नपे तुले अंदाज में कहा, आपकी तारीफ का शुक्रिया। अलमीर ने दरमियान में बात मोड़ने की कोशिश की, अगर हम बजट पर वापस आ जाए तो? मगर तीसरा आदमी हंसकर बोला, बजट तो हो जाएगा, पहले ये बताइए कि इतनी टैलेंटेड और खूबसूरत एम्प्लॉय आपको कहाँ से मिली? ये जुमला सुनते अलमीर के जबड़े भींच गए। उसे पानी का गिलास उठाकर एक घूंट लिया मगर खामोश रहा। ये एक अहम मीटिंग थी, इसलिए वो कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। हिना ने इस बार पहले से ज्यादा इत्मीनान के साथ जवाब दिया, टैलेंट किसी एक जगह की मिरास नहीं होता, मेहनत और मौका मिल जाए तो सामने आ ही जाता है। वो तीनों मुस्कुरा दिए। वाकई, एक ने कहा, आप जैसे लोग कंपनी की पहचान बन जाते हैं। अलमीर ने दोबारा रोक मोड़ने की कोशिश की। हम अगले हफ्ते के शेड्यूल, वैसे बात फिर आ गई थी, आपकी प्रेजेंटेशन पूरे रूम का माहौल बदल देती है। हिना ने कोई झिझक महसूस नहीं की। मीटिंग का मकसद है काम और मेरा फोकस भी वही है। उसने शाइस्तगी मगर मजबूती से कहा। अलमीर खामोशी से ये सब सुनता रहा। कहने को वो महज इसकी एम्प्लॉय थी, बस इतना ही, मगर हर तारीफ, हर नजर उसके अंदर किसी अनजानी बेचैनी को जन्म दे रही थी। उसे नागवार लग रहा था कि कोई उसकी मौजूदगी को इस तरह नोटिस कर रहा हो, सराह रहा हो। मीटिंग खत्म हुई, रस्मी मुसाफिर दोबारा हुए। हिना ने पुरसुकून अंदाज में सबको खुदाफिज कहा। बाहर निकलते हुए पुरएतमाद थी, मुतवाजिन थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर अलमीर के अंदर खामोशी से कुछ हिल चुका था और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि महज प्रोफेशनल बेचैनी थी या उससे कहीं ज्यादा। कुछ देर तक वो रेस्टोरेंट में बैठा रहा, फिर बेग टार खड़ा हो गया। अब मजीद ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मासरत क्यों अपनी बीवी के हमरा वहां से निकला है। रास्ते में एक दो दफा हिना ने इसकी इस अमल पर सवाल भी उठाया कि तमाशा करने की क्या जरूरत थी, हम तरीके से भी तो आते, इससे हमारी डील पर असर पड़ सकता है। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऑफिस पहुंचकर उसने सीधा अपने केबिन में वो चला गया, क्योंकि वो भी खामोशी से अपनी टेबल पर चली गई थी। वो इतनी ही बात को पसंद करती थी जो अगला बर्दाश्त कर सके। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दोपहर की रोशनी शीशे की खिड़कियों से छन छन कर केबिन में फैल रही थी, मगर अलमीर के अंदर अंधेरा था। वो अपनी कुर्सी पर बैठा नहीं था, बल्कि बार बार उठकर खिड़की तक जाता, फिर वापस आकर मेज पर रखी फाइलों को बेतरतीब अंदाज में हटा देता। पेशानी पर बल थे, जबड़ा सख्ती से भींचा हुआ, आंखों के सामने एक ही मंजर बार बार उभर रहा था। उन डीलर्स का हिना से हाथ मिलाना, उनकी नजरें, उनकी मुस्कुराहटें और हिना का पुरएतमाद अंदाज। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, एक प्रोफेशनल मीटिंग थी, ये सब नॉर्मल था। वो एक पर्सनल असिस्टेंट है, इसे इसी तरह क्लाइंट हैंडल करने थे। मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ देर तक वो जब्त करता रहा, फिर अचानक मेज पर रखा मोबाइल उठाया, स्क्रीन देखे बगैर कॉल मिला दी। हिना, फौरन मेरे केबिन में आओ। आवाज में सब टूटने के किनारे की सख्ती थी। वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब तक वो अपने अंदर का लावा निकाल ना लेता, उसे सुकून नहीं आ रहा था। छह मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए। वो संजीदगी से दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला। वो अंदर दाखिल हुई, चेहरे पर रस्मी संजीदगी, आंखों में सवाल था। उसे देखते हुए बोली, जी सर। उसे लगा शायद मीटिंग के हवाले से वो कोई सवाल या जवाब करेगा, इस हवाले से कोई बात होगी। लेकिन उसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि मामला उससे मुतालिक है। दरवाजा बंद होती अलमीन ने रुख मोड़ा। वो कुछ और कहती, उससे पहले ही उतारा, आखिर तुमने उन लोगों से हाथ क्यों मिलाया? आवाज बुलंद नहीं थी, मगर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो इतनी बातचीत क्यों की? प्रेजेंटेशन देने के बाद तुम्हें खामोश रहना था, बिला वजह की बातें क्यों कर रही थी? इत्मीनान होना चाहिए था, कॉन्फिडेंट होना चाहिए था, बिला वजह की बातें करने की जरूरत क्या थी? मुझे बताओ अभी के अभी। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो हैरानी से बोली, मैंने वही किया जो मीटिंग का तकाजा था। आप इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं? सब नॉर्मल है, एक पर्सनल असिस्टेंट को इसी तरह सब कुछ डील करना होता है। अगर क्लाइंट मुझसे मुखातिब था तो क्या मैं उसे मना कर देती कि मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है? इस तरह हमारी डील पर असर नहीं पड़ता क्या, कि ये स्टाफ मेंबर ही अच्छे नहीं है तो कंपनी क्या अच्छी होगी? नहीं। उसे बात काटती, तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों थी? तारीफ सुनकर पागल हो गई थी क्या, या फिर पहली बार तारीफ सुन रही थी जो हर बात का जवाब दे रही थी? बैठ कर। हिना के चेहरे पर एक लम्हे को नागवारी आई, मगर उसने खुद को संभाला। उसकी जानिब देखते हुए संजीदगी से बोली, आपको कोई क्यों बुरा लग रहा है? उसने पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में कहा, ये काम का हिस्सा होता है ना,
क्लाइंट से बातचीत, नेटवर्किंग, ये सब प्रोफेशनल लाइफ में नॉर्मल है। अलमीर एक कदम आ गया है। तुम सिर्फ मेरी सेक्रेटरी नहीं हो। उसकी आवाज़ भारी हो गई। तुम मेरे निकाह में भी हो, बीवी हो तुम मेरी, और तुम मेरे ही सामने बैठकर गैर मर्दों से बातचीत करोगी, उनसे हाथ भी मिलाओगी। क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? ये सुनकर हिना की आंखों में हैरत उभरी। अब तो खुद इस निकाह को मानता ही नहीं है। वो फौरन बोली, कल तक आप कह रहे थे कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, आज अचानक से? अलवीर खामोश हो गया। चंद सेकंड ऐसे गुजरे जैसे कमरे की फिजा मुंजमद हो गई। फिर उसकी गहरी सांस ली, आवाज में कंट्रोल किया, मगर अल्फाज सख्त हो गए। सुन लो, जब तक तुम मेरे निकाह में हो, हर काम मेरी मर्जी से करोगी। मैं जिससे बोलूंगा उससे हाथ मिलाओगी, मैं जिससे बोलूंगा उससे बात करोगी। बिला वजह की हरकतें करने की जरूरत नहीं है। बेशक तुम मेरी असिस्टेंट हो, लेकिन औकात में रहो। मैं बिला वजह की ड्रामेबाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम खानदान से हैं। हमारी औरतें गैर मर्दों से हाथ नहीं मिलाती। समझ आई? इन्होंने आंखें सुखेड़ ली। ये मुमकिन नहीं। वो मजीद कुछ कहती उससे पहले ही वो उसकी बात काट कर बोला, और हाँ, उसने बात जारी रखी, ये बात सहन नशी कर लो, सामने कोई भी शख्स हो तुम हाथ नहीं मिलाओगी। एक बार फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं। ये सुनते ही हिना का सक टूटा। आप अपनी हद पार कर रहे हैं। वो तेज आवाज में बोली, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, आप मुझे इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, उसे सर दर्जे में कहा, क्योंकि ये मेरा ऑफिस है, और तुम और मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ कि आप जो कहे मान लो। वो बोलते बोलते रुक गई। सांस तेज हो गई, आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ थे। छंदों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर हिना ने नजरें झुका दी। ठीक है, उसकी आवाज मथम हुई। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। वो मुलाजमा ही थी, और ये बात उसे एकदम महसूस हुई थी। ये अल्फाज कहकर वो खामोश हो गई। कोई मजीद बहस नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक थकी हुई सी खामोशी। अलमीर ने उसे देखा। वो जवाब देने के लिए तैयार था, शायद मजीद सख्ती करना चाहता था, मगर उसकी खामोशी ने उसके अल्फाज छीन लिए। कमरे में अब सिर्फ दीवार घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। हिना आहिस्ता से पलटी, दरवाजा खुला और बाहर चली गई, और वो वहीं खड़ा रह गया। गुस्सा अभी भी था, मगर उसके नीचे कहीं एक अजीब सा एहसास सर उठा रहा था। ऐसा एहसास जिसका नाम वो खुद भी नहीं जानता था, और मानने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय पा चुका था। रात काफी आगे बढ़ चुकी थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी। बेड के एक किनारे पर वो बैठी हुई थी, और मीर दूसरी तरफ। दोनों के दरमियान फासला कम, मगर खामोशी बहुत ज्यादा। और मुसलसल मोबाइल स्क्रीन पर नजर जुमाए बैठी थी। उंगलियां बेतरतीब अंदाज में स्क्रीन पर चल रही थी। कभी टाइप करती, कभी रुक जाती, फिर दोबारा स्क्रीन देखने लगती। चेहरे पर वाज़िया परेशानी थी जो छुपाई नहीं छुप रही थी। अलमीर ने 2 बार नजरअंदाज किया, खुद की बावर करवाने की कोशिश की इसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जब उसने इसे बार बार एक ही नंबर पर मैसेज करते देखा तो जब्त जवाब दे गया। क्या हुआ है? उसने कदर सख्त मगर कंट्रोल ने आवाज में पूछा। किससे बात कर रही हो? न जाने क्यों उसकी अब हर छोटी छोटी बात पर नजर रख रहा था, और ऐसा क्यों कर रहा था वो खुद नहीं जानता था। वो बेख्याली में बोल पड़ी, जैसे सवाल की नौयत समझ रही हो। अदनान से बात कर रहे हो? कल बाबा को अस्पताल लेकर गया था, उसे खैरियत ले रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा बाबा की तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही। छोटी को भी मैसेज कर रही हूँ, मगर वो भी जवाब नहीं दे रही। सोच रही हूँ कि कल चली जाओ और एक हफ्ता उनके पास रुक कर आओ। अच्छी तरह उनको तंदुरुस्त देख लो, तभी मुझे कुछ सुकून मिलेगा। पता नहीं उन्होंने अपना हाल क्या बना रखा है। उनकी खातिर मैं नौकरी कर रही हूँ, और एक ये है जो खुद को ठीक ही नहीं रखना चाहते। अलमी का चेहरा फौरन संजीदा होगा। बिल्कुल नहीं, उससे दो टूक अंदाज में कहा। एक हफ्ता तो क्या, तुम एक दिन की भी तुम्हें इजाजत नहीं है। तुम यहाँ से मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट में हो, भूलो मत। अपने मुंह तुम छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि तुम्हारा ड्यूटी का वक्त है। उससे एक मोबाइल से नजरें हटाई। मैं माँ सही से इजाजत ले लूंगी। मुझे यकीन है वो मना नहीं करेंगी। अगर आप मेरे बॉस हैं तो वो भी मेरी बॉस है। आपको रिश्तों की कदर नहीं है, लेकिन मुझे मेरे बाबा का मामला है। मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर यहाँ नहीं बैठ सकती। आपको ये बात समझनी होगी, हर कीमत पर। वो चंदन में खामोश रही, फिर उसे देखते हुए बोला, नहीं है, मुझे रिश्तों की कदर हो। कुछ कहना बाकी है तो कह लो, क्योंकि मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। मैं मना करूंगा, मेरा क्या होगा? अगर तुम चलेगी, मैं यहाँ अकेले क्या करूंगा?
یہ جملہ سن کر وہ چونکی۔ اس نے مکمل توجہ سے اسے دیکھا۔ آپ کا کیا ہونا ہے سر؟ آواز میں حیرت تھی۔ مجھے جانا ہوگا، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عدنان بتا رہا تھا کہ ان کے دل میں بھی درد ہو رہا تھا، اسے ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ میں ویسے ہی ان کی سرجری کو لے کر پریشان ہوں، کوشش کروں گی آفس آ جاؤ، لیکن آپ کے گھر نہیں آ سکتی، مجھے رات ان کے ساتھ ہی گزارنی ہوگی۔ علمین نے لمحہ بھر سوچا، پھر بولے، تو ہم ان کی سرجری کروا لیتے ہیں نا، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ، لیکن تم نہیں جاؤ گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تم یہیں میرے ساتھ رہو گی۔ نہ جانے کیوں اس کے انداز میں جذباتی پن ظاہر ہو رہا تھا، آنکھوں میں ضد کا عنصر جھلک رہا تھا۔ اس کی بات سنتے وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر ایسی ہی طبیعت ماسا کی خراب ہو جائے تو کیا آپ نہیں جائیں گے؟ کیا آپ اسی طرح کسی غیر کے گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ وہ میرے بابا ہے، میری کل کائنات، اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ ان سے ہی محبت ہے، ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ یہ جاب ہے، یہ دنیا، یہ سب میرے بے معنی ہو جائے گی اگر میرے باپ کو کچھ ہو گیا۔ علمیر کے لہجے میں ایک دم تیزی آ گئی۔ ساری بیٹیاں اپنے باپ کو لے کر ایسی ہوتی ہے، تم کیوں انوکھی نہیں ہو؟ اور یہ بتاؤ، یہ عدنان کون ہے؟ اسے شک میری نظروں سے اسے دیکھا۔ کس لڑکی سے اتنی باتیں کر رہی ہو؟ اور کون ہے یہ جو تمہارے باپ کو ہسپتال بھی لے کر جا رہا ہے، تمہاری بہن کو اور تمہیں فون کر کے بتا رہی ہے کہ ہم دونوں لے جاتے ہیں انہیں ہسپتال؟ غیر لڑکوں کو بلا رہے ہو اور ان سے تعلق نہیں رکھ رہے ہو؟ وہ لمحہ بھر کو رک گئی، پھر صاف لہجے میں بولی، کوئی غیر لڑکا نہیں یا گلی کا لڑکا نہیں ہے، وہ میرا کزن ہے، میرے تاؤ کا بیٹا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، عمر میں مجھ سے بڑا ہے، سمجھدار انسان ہے اور رشتوں کی قدر کرنا جانتا ہے، میرے بابا کو اپنے باپ جیسا مقام دیتا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے بولا، تو اگر اپنے چاچو کا خیال رکھ رہا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر بھتیجے کا اپنے چاچا یا تایا کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے اگر ان کا کوئی حقیقی بیٹا نہ ہو۔ اس میں اتنا جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس سے اتنی باتیں کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ علمین نے ناگواری سے کہا، اپنی بہن کو ڈائریکٹ فون کر لو، اگر بیلنس صحیح ہے تو میرے فون سے کر لو، چھوڑو، اس سے باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ ایسے لڑکوں کو زیادہ لٹکانا نہیں چاہیے، وہ اب آپ کے گھر تک میں گھس جاتے ہیں۔ وہ حیران ضرور ہی مگر بحث نہیں کی اور خاموشی سے موبائل کان پر رکھا اور اپنی بہن کو کال ملائی۔ پہلی بیل پر کال اٹھ گئی تھی۔ آپ کہاں پر ہیں؟ میں کب سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اب کال ریسیو ہی نہیں کر رہی تھی۔ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً بولی، میں بھی تمہیں کب سے میسج کر رہی ہوں لیکن تم نے بھی جواب نہیں دیا۔ خیر ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کیا ہوا ہے بابا کو؟ وہ بولی، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی تکلیف بڑھ رہی ہے، آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں، کل آپ آ جائیں نا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ ہاں میں کل آؤں گی اور پورا ہفتہ رہوں گی، تم پریشان مت ہو، ہم بابا کا علاج بھی اچھے اسپتال میں کروائیں گے۔ جی آپی، امی بلا رہی ہے، آپ پیکنگ وغیرہ کر لیں، میں پھر بات کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ فون بند ہوا تو کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ علمین نے اسے دیکھا، کیا کہا ہے؟ جانا ضروری ہے؟ تاثرات سے وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ پیچیدہ ہے۔ تو تھکی ہوئی آواز میں بولی، آپ اتنے بے چین کیوں ہو رہے؟ جانا ضروری ہے، میرے بابا کی طبیعت کا مسئلہ ہے۔ میں بے چین نہیں ہو رہا، وہ فوراً بولا، میں صرف سوال کر رہا ہوں اور مجھے جواب چاہیے، میں تمہارا باس ہوں۔ اسے سر ہلا۔ جی ضروری ہے جانا سر، اگر سرجری کا مسئلہ ہوا تو میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گی، آپ کو سرجری کروانی ہوگی، بے شک آپ پیسے مجھے 6 مہینے بعد دینے والے تھے مگر میری مجبوری ہے۔ امیر چند میں خاموش رہا، پھر مختصر سا جواب دیا، ٹھیک ہے۔ وہ دوبارہ موبائل اسکرین کی طرف دیکھنے لگی مگر دل کہیں اور تھا، اور امیر وہ خاموش بیٹھا تھا مگر اس کی خاموشی میں ایک انجانی بے چینی سانس لے رہی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکتی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے پا گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر میں خاموشی ایسی تھی جیسے ہر چیز سانس روک کر کسی انہونی کا انتظار کر رہی ہو۔ اگلی صبح ہنا نور جہاں بیگم سے اجازت دے کر چلی گئی تھی اور اب وہ تنہا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہی کمرہ، وہی دیواریں، وہی پردے، مگر سب کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اس کی نظر لاشعوری طور پر اس جگہ جا ٹھہری جہاں ہنا سوتی تھی۔ بستر کا وہ حصہ صاف اور سلیقے سے درست تھا، جسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے اٹھا ہو۔ نہ جانے کیوں آج پہلی بار کمرہ اسے بہت
खाली खाली महसूस हुआ। वो लड़की जिसे वो कभी खास पसंद भी नहीं करता था, आज शिद्दत से उसको याद आ रही थी। कहने को उन दोनों के दरमियान ज्यादा बातें नहीं होती थी, ज्यादातर रस्मी जुमले, काम की बातें या खामोशी, मगर वो खामोशी भी अब उसे मायने खैज लगने लगी थी। वो साथ होती थी तो कमरे में एक जिंदगी सी महसूस होती, उसकी मौजूदगी ही उसके लिए काफी होती, और आज उसकी गैर मौजूदगी ने उसे बेचैन कर दिया था। उन्हीं ख्यालों में गुम था कि अचानक कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से खुला। नूरजहां बेगम अंदर दाखिल हुई। उनके कदमों की चाप सुनते ही वो चौंक कर सीधा हुआ, मगर अगले लम्हे उनके चेहरे पर नजर पड़ी तो उसके लबों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसके करीब आकर बैठ गई और नरमी से बोली, क्या बात है, बीवी को याद किया जा रहा है? उसे फौरन जर नफी में हिलाया, मगर उसकी आंखें उसकी बात का साथ नहीं दे रही थी। नूरजहां बेगम ने उसके चेहरे का बखूब जायजा लिया और हल्के से मुस्कुरा कर बोली, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, मगर मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती। वो लम्हे भर के लिए चौंका, फिर संभल कर बोला, आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला मेरे और हिना के दरमियान? उन्होंने सर हाँ में हिला दिया। वो संजीदा हो गया, चंद में खामोश रहा, फिर आहिस्ता मगर वाज़ेह लहजे में बोला, लेकिन अम्मी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, ये बहुत आगे बढ़ चुका है। आज उसका मेरे घर से जाना मुझे अंदर ही अंदर तकलीफ दे रहा है। वो मुझे याद आ रही है, मेरा कमरा खाली लग रहा है। उसने गहरा सांस लिया, जैसे अपने दिल की बात कहने के लिए खुद को हल्का कर रही हो। ऐसा लगता है मुझे उससे मोहब्बत हो गई है माँ साई, और मैं उसके बगैर अब रह नहीं सकता। नूरजहां बेगम के चेहरे पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट थी। नरमी से बोली, मुझे ये बात पहले दिन से ही मालूम थी। मेरे बेटे में बस इंतजार कर रही थी कब तुम खुद अपनी मोहब्बत को कबूल करो। निकाह में बहुत बरकत होती है, और तुम्हें ये बात देर से ही सही मगर समझ आ गई है। वो थोड़ा झिझक कर बोला, लेकिन अम्मी, मैं उसको कैसे बताऊं? वो तो मेरे पास रहने को सिर्फ एक जॉब समझती है। नूरजहां बेगम ने उसके हाथ पर हाथ रखा। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी यही चाहती है कि तुम दोनों की अलहदगी ना हो। बस तुम्हें पहल करनी होगी। उसके बाबा का इलाज कराओ। बेटियां अपने बाप से बहुत अटैच होती है, उनका दर्द समझो। उन्होंने ठहर ठहर कर उसकी आंखों में देखा और कहा, और अपनी दिल की बात अपनी बीवी से कहो। मेरे पास एक प्लान है। कल ही वो दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आएगी। मुझे सर हिलाया, इस बार पूरे यकीन के साथ, ठीक है अम्मी, अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। कमरे की खामोशी अब भी वही थी, मगर उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून उतर आया था, जैसे उसने खुद से एक सच मान लिया हो, और यही मान लेना उसके लिए सबसे बड़ा फैसला था। अगला दिन भी मामूल के मुताबिक तय पा चुका था। रात के धीरे धीरे फैलने वाले सन्नाटे के बीच अगली शाम वो अपने वालिद के साथ बैठी थी। अचानक फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नूरजहां बेगम का नाम नजर आ गया। फोन उठाते ही वो काम गई। उनकी आवाज में हल्की परेशानी थी। बेटा, फौरन घर आओ, तुम्हारे शौहर का एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाजू में शदीद चोट लगी है। वो फौरन हड़बड़ाई। वालिद के घर से बाहर निकलते ही गाड़ी की तरफ दौड़ी। ड्राइवर हर वक्त उसके साथ ही था। वो सीधा खान मंजिल पहुंची थी। घर के दरवाजे खुलते ही वो अंदर दाखिल हुई और सीधा नूरजहां बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी, और सामने सोफे पर ही बैठी थी। वो कुछ कहती उससे पहले वो बेचैनी से बोली, तुम भी डॉक्टर हो, तुम देखो ना मेरे बेटे को, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। हिना पहले थोड़ा हैरान हुई, पर हाँ में सर हिलाकर खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में दाखिल हुई। सामने वो बिस्तर पर लेटा था, बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। न जाने क्यों उसका दिल जोर से धड़का। और फौरन उसके पास पहुंची, फिक्रमंद लहजा में बोली, क्या हुआ है, अपना हाथ दिखाए। उसने बिस्तर पर लेटे हुए हल्का सा कांपते जवाब दिया, बड़ी फिक्र हो रही है मेरी, एक काल पर भागी भागी आ गई। वैसे तो तुम पूरा हफ्ता रुकने के लिए गई थी। उसने गुस्सा से उसको घूरा और बोली, इस बात को छोड़े, मुझे हाथ दिखाए। अलमी ने उसका हाथ पकड़ कर बिस्तर पर लिटा दिया और नजरें उसके चेहरे पर घाटी। वो कुछ कहती उससे पहले ही उसके होंठों को देखते नरमी से बोला, कुछ नहीं हुआ, मैं बस तुम्हारी तड़प देखना चाहता था कि तुम मेरे लिए क्या महसूस करती हो। वो चौंक कर बोली, क्या मतलब? मेरे वालिद घर पर बीमार है और आप ये सब कर रहे हैं? उसने आहिस्ता से उसके कान को करीब सर झुकाया और बोला, बाप का आंगन छोड़ चुकी हो ना, अब शोहर का आंगन संभालो। मुझे देखो, मेरे एक चोट लगी है। हिना एक लम्हे के लिए पीछे हटी और सर झुकाया, फिर बोली, आप हटे, मैं पहले आपका हाथ देखूंगी, फिर मुझे वापस जाना है। अलमीन ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर नरमी और शिद्दत के मिले जुले अंदाज में बोला,
اپنے مریض شوہر کو ایسی حالت میں چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ اور لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی، پھر ہلکی سی سختی کے ساتھ بولی، آپ کیوں پریشان کر رہے ہیں مجھے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے چند میں خاموشی اختیار کی، آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے رکھی، پھر بولا، مجھے تمہاری طلب ہو رہی تھی، مجھے میرا حق چاہیے، بیوی ہو تم میری۔ ہینا نے سر جھکایا، آواز میں سختی تھی، ہم کانٹریکٹ کے ذریعے ایک دوسرے کی زندگی میں۔ المین نے فوراً سر کو ہلایا اور اس کے نزدیک ہوتے بولا، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، باہر میں گیا وہ کانٹریکٹ۔ یہ کہتے وہ چپ گیا۔ ہینا کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آنکھوں میں حیرت، چہرے پر سرخی، مگر وہ نہیں ٹھہرا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لیتا چلا گیا۔ اس کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی، مگر وہ نہیں ٹھہر رہا تھا۔ اتنی سختی سے اس کو اپنے نزدیک تر کیا کہ ہینا کی جان نکلنے لگی تھی، لیکن جیسے جیسے رات گزرنے لگی اس کے عمل میں نرمی آنے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے سب بھول کر اپنے شوہر کا لمس محسوس کرنے لگی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی زندگی کیسے بدلنے والی ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ سورج کی پہلی کرن دھیرے دھیرے کمرے میں گھس رہی تھی، پردے سے چھن کر آنے والی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ چند میں خاموشی سے چھت کو گھورتی رہی، جیسے دماغ ابھی پوری طرح سے بیدار نہیں ہوا ہو۔ لیکن جیسے ہی ہوش بحال ہوا وہ اچانک گھبرا کر بیٹھ گئی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز اور ہاتھ پسینے سے شرابور تھے۔ اس کی نظریں فوراً بستر پر پڑی جہاں المیر خاموشی سے لیٹے گہری نیند سو رہا تھا۔ غصے میں آہستہ مگر سخت لہجے میں بولی، جاگے، اب سو کیوں رہے ہیں؟ مجھے بتائے، آپ نے کیا حرکت کی ہے یہ؟ المیر نے آنکھیں آہستہ سے کھولی اور خمار الود آواز میں بولا، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ دل چاہ رہا ہے میرے قریب آنے کا؟ اس کی پکار پر وہ جھنجھلا کر بولی، بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ آپ اور میں کانٹریکٹ کے ذریعے ایک دوسرے کی زندگی میں آئے تھے، اور آپ میرے نزدیک کیوں آئے؟ آپ نے رشتہ قائم کیوں کیا؟ المین نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب سر جھکا کر بولا، میں نے صرف اپنا حق لیا ہے۔ اگر تم اس بات پر مجھ سے جھگڑا کرو گی تو خود ہی گنہگار بنو گی، میرا کچھ نہیں بیٹھ جائے گا۔ وہ تڑپتی ہوئی بولی، وعدہ خلافی کے اوپر آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ المین نے سر ہلایا، مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، سب تمہیں ہی ملے گا، گناہ ثواب سب کچھ۔ اب چپ چاپ جاؤ، تیار ہو جاؤ، ہم دونوں ماں سائیں کو سچ بتانے جا رہے ہیں۔ وہ پہلے حیران ہوئی، پھر بولی، لیکن آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، شادی کسی بھی چیز کو آپ پسند نہیں کرتے تھے، پھر یہ سب اچانک؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی کہ المین نے اچانک اس کے دونوں ہاتھوں کا تھام لیا، بولا، اب محبت ہو گئی ہے تم سے، تمہیں اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں، اس میں کچھ غلط نہیں ہے، بیوی ہو تم میری۔ وہ لمحہ بھر کے لیے جمود میں رکھی، پھر اس نے سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو جھلک گئے۔ وہ اپنے آپ کو روک نہ سکی، اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ المین نے آہستہ سے اپنی جگہ چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھا، جبکہ وہ پیچھے رہ گئی، آنکھیں نم، دل دھڑکتا اور جسم کانپ رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، دل کے اندر کی ہر ادھوری خواہش، ہر چھپی ہوئی محبت اب باہر نکل رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اپنے جذبات کس طرح ظاہر کرے، مگر ایک بات محسوس کر رہی تھی، وہ بھی اسے محبت کرنے لگی تھی، اور آج اس کا اظہار اسے سرشار کر گیا تھا۔ کمرے میں اب صرف روشنی، خاموشی اور انجم محبت کے احساسات تھے۔ وہ بیٹھی رہی، روتی رہی، مگر اندر ایک عجیب سکون بھی محسوس کر رہی تھی، جیسے ہر چھپی ہوئی خواہش نے آخر کار اپنے حقیقی رنگ دکھا دیے ہوں۔ کچھ دیر بعد نور جہاں بیگم کے کمرے کا ماحول خوشیوں بھرا ہوا تھا، اور صوفے پر وہ مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی، جیسے دن کی روشنی ان کے چہرے پر رقص کر رہی۔ جیسے وہ دونوں اندر داخل ہوئی وہ کھڑی ہو گئی، وہ ہلکی خوشی سے لرزتی آواز میں بولی، مجھے پتا تھا میرا بیٹا سلطنت جیت جائے گا، اور ہینا سے بہتر لڑکی تمہیں مل ہی نہیں سکتی۔ تم نے اپنے لیے بہت خوبصورت انتخاب کیا، دونوں بہت خوش رہو گے۔ ہینا کچھ کہنے والی تھی کہ نور جہاں بیگم نے اسے فوراً گلے لگا لیا اور دھیمی مگر پراسر آواز میں بولی، سب بتایا مجھے، اور مجھے پہلے سے ہی سب علم تھا، میں بس صحیح وقت کا انتظار میں تھی۔ المیر ہینا کی طرف پڑا اور اس کے کندھوں کو تھام کر اسے اپنے قریب کھینچا اور آہستہ سے بولا، اور شاید خدا تعالیٰ بھی صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں، بہتر ہوگا، بہتر وقت پر میرے دل میں تمہارے لیے محبت ڈال دی اللہ نے۔ ہینا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اسے سر ہلایا اور اسے مزید قریب لے لیا اور مزید بولا، تمہارے بابا کی سرجری کے لیے میں نے ہسپتال شفٹ کروا دیا ہے، سرجری کچھ دیر میں شروع ہو جائے گی۔
ہم دونوں اسپتال چل رہے ہیں، اور جب وہ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے پھر ہم ولیمے کی رسم ادا کریں گے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ہینا نے سر ہلایا، اس بار نہ خوف نہ گھبراہٹ، بس مکمل یقین اور سکون کے ساتھ۔ المی نے اسے دوبارہ اپنے گلے میں لگایا، اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور دھیمی مگر پر اثر لہجے میں کہا، ہم نے سب کچھ اپنے طریقے سے ٹھیک کر دیا ہے، اب بس زندگی کے ہر لمحے کا ساتھ گزارنا ہے۔ تمہارے بغیر یہ خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ نور جہاں بیگم نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، یہی سب سے بڑی خوشی ہے، تم دونوں نے محنت اور صبر سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ تمہاری زندگی محبت اور عزت سے بھری رہے۔ ہنا اور میں دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ کمرہ خاموش تھا مگر ہر کونے میں خوشی کی روشنی اور محبت کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ المی نے آہستہ سے ہنا کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، اب بس، ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ آج کے بعد سب رکاوٹیں، سب خوف، سب پریشانیاں ختم، بس تم اور میں اور ہماری محبت۔ ہنا نے سر ہلایا، ایک لمحے کے لیے اپنی محبت کا اظہار آنسوؤں کے ساتھ کیا، پھر دونوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے گلے لگایا۔ نور جہاں بیگم بھی قریب آئی اور اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ آج ان کا گھر مکمل ہو چکا تھا۔ بے شک صبر کرنے والے آخر میں بہترین پھل حاصل کرتا ہے۔ صبر انسان کو کبھی کبھی تکلیف نہیں دیتا بلکہ ایک وقت بعد سکون بھی دے دیتا ہے، جیسے آج ان دونوں اور ان کی ماں کو صبر عطا ہو گیا تھا۔ بے شک نکاح میں برکت ہے۔